कभी राहुल गांधी ने जिस शख्स को वोट चोरी का सबूत बताते हुए देश के सामने पेश किया था, वही गुरकीरत सिंह डांग अब एक बार फिर सुर्खियों में है। फर्क बस इतना है कि इस बार उन्हें सामने लाई है बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने डांग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लेकिन डांग ने आखिर कहा क्या, ये जानने से पहले जरा पीछे चलते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि गुरकीरत सिंह डांग ने 4 अलग-अलग बूथों पर वोट डाला और ये वोट चोरी का साफ सबूत है। राहुल ने डांग का नाम और चेहरा सामने रखकर सरकार पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया था। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. राहुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से गुरकीरत सिंह डांग सोशल मीडिया पर मीम्स का चेहरा बन गए। लोग डांग का नाम लिखकर उन्हें बहरूपिया की तरह पेश करने लगे। खुद डांग का कहना है कि इस तरह की फेक और मजाक उड़ाने वाली पोस्ट से वो परेशान हैं और वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब डांग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनका नाम बिना उनकी मर्जी और बिना सच्चाई जाने इस्तेमाल किया। Today, I speak not just for myself, but for every citizen who believes in truth, fairness and dignity. Shri Rahul Gandhi ji, with all due respect, don't be a bad loser. Losing an election does not mean it was rigged. It simply means the people of India did not choose you because they did not see the work they expected during your tenure. In your 1-hour-long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dang, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth. And you would not have dragged my name into your political theatre. False accusations are not just words, they have consequences. They tarnish reputations, invite harassments, and undermine a citizen's trust in our democracy. I demand that you present your evidence to the nation or issue a public apology. Anything less is not leadership, it is slander. India deserves leaders who can accept defeat with grace, not ones who hide behind false claims and scapegoats. I stand here unafraid because truth is on my side and I will not let lies go unchallenged. गुरकीरत से पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मिंता देवी और उनके ससुर ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर अपने आरोपों को हवा दी। मिंता देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, लोगों को मिल रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए कि 125 साल की होकर मैं जिंदा हूँ। हाँ, तब जब जिंदा हूँ तो उस सब चीज का लाभ मुझे होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? होना चाहिए कि जब उनके नजर में, सरकार के नजर में ही मैं हूँ तो मुझे होना चाहिए कि सरकार मुझे दे। ना ये दिख रहा है कि मैं 30 या 35 साल की हूँ तो मेरा कागज सुधरवा के भेज। ये तो काम करना पड़ेगा ना, 2 गो में एगो तो कोनो करेगा ना, कि तो मेरा कागज सुधरवाएगा ना तो बुढ़ा पेंशन का योजना लागू करेगा, यही ना करेगा।
यानी साफ है कि वोट चोरी का मुद्दा अब दावा और पलटवार का खेल बन चुका है। राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं और अब वही चेहरे पलटकर उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन एक बात तय है कि ये राजनीतिक बहस अब और तेज होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या सच में वोट चोरी का मामला है या फिर ये सिर्फ राजनीति का खेल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।